I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? Yet there will be 7.8 million females who will not find life partners. ایک مرد اگر 4 بیویاں رکھے تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک عورت جو ہے ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرے تو اسے جو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال میرا نہیں بلکہ ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا ہے. ایسا حیران کن سوال. جی ہاں، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو ہے آئے روز لوگ جو ہے طرح طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انہیں ان کے سوالات کے مطمئن جواب بھی دیتے ہیں. لیکن آج جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک خاتون نے ایسا حیران کن سوال کیا کہ جسے سننے کے بعد ہر کوئی حیران رہ گیا. ان خاتون نے سوال کیا کہ اسلام میں جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرتا ہے، مطلب اگر 4 بیویوں سے شادی کرتا ہے تو اسے مطلب جو ہے ایک اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک عورت جو وہ بیک تک ایک سے زیادہ جو ہے مردوں سے شادی کرے تو اسے جو ہے بدکار عورت کہا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کے ان حیران کن سوال کا کیا جواب دیا ہے. سو آپ نے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے. تو چلیے پھر دیر کس بات کا، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے. I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، مسلمانوں کی 4 شادیوں کو لے کر بڑا ہنگامہ مچا رہتا ہے. آئے دن غیر مسلم یہی مدعا لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا 4 شادیاں صحیح ہیں یا نہیں. اسلام پر تنقید کرنے والے اس اجازت کے پیچھے کی حکمت نہیں دیکھ پاتے. ان کی سوچ اگر اتنی ہی وسیع ہوتی تو وہ بغیر علم کے محقق تنقید برائے تنقید ہی نہ کرتے. مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی اسلام اور 4 شادیوں کے موضوع پر 4 شادیوں کی حکمت، اس کے پیچھے کے عوامل اور اس سے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی سوالات کیے. ہر جواب کے بعد اس خاتون نے ایک اور سوال کھڑا کیا، مگر ڈاکٹر صاحب نے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے. آپ کو یہ ساری گفتگو اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے دکھاتے اور سناتے ہیں. ناظرین، اس خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا بےہودہ اور غیر اخلاقی حرکت ہے. مجھے 4 شادیوں کے مفہوم کا علم ہے، مگر آپ کی زبانی میں آپ کے خیالات جاننا چاہتی ہوں. اور اگر عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں، جیسا کہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے، تو اگر عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں تو مسلمانوں کو ایک بیوی رکھنے کی پابندی کرنا چاہیے. I find it immoral and vulgar for a Muslim to have more than one wife. What do you think about this? Actually, I know the roots of this, but I want to know your opinion about this. And I think if our religions, Christianity and Islam unites, I think that Muslims should have one wife. اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو اتفاق سے رہنا چاہیے، مگر اس 4 شادیوں والے پوائنٹ پر آپ کا اتفاق دینے پر زور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے ہم اکیلے ہی کھڑے ہوں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. ایک چیز جس کی دین اجازت دیتا ہے اس کو رد کر کے دوسرے مذہب کے ساتھ اتفاق کا مجھے کوئی دینی فائدہ نظر نہیں آتا. قرآن پاک دنیا میں واحد آسمانی صحیفہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف ایک شادی کرو. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب ایسی موجود نہیں جو قرآن پاک کی طرح واضح الفاظ میں کہتی ہو کہ ایک شادی کرو. اگر آپ ہندو صحیفے رامائن کو پڑھیں اس میں شری رام کے باپ کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھیں. اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو سلیمان کی 700 بیویاں تھیں، ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں. تو ہندوازم، عیسائیت اور دیگر مذاہب میں کوئی قید ہی نہیں. آپ 2، 4، 8، 10 یا چاہے تو کتنی ہی شادیاں کر لیں، کوئی حد ہی مقرر نہیں کی گئی. اسلام واحد مذہب ہے جس نے شادیوں کی تعداد پر حد مقرر کی ہے. سورہ نساء میں لکھا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو. تو یہاں تو صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے جو ایک مقررہ تعداد سے زیادہ شادیوں کو حلال قرار نہیں دیتا، اور ایک سے زیادہ شادیاں بھی تبھی کرنے کی اجازت ہے جب مرد تمام بیویوں میں انصاف کر سکے، ورنہ تو ایک ہی شادی کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر مرد تمام بیویوں میں انصاف کر بھی سکتا ہے تو بھی 4 شادیوں سے زیادہ
शादियां कर नहीं सकता। अब अगर सूरह निसा को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि मर्द को इंसाफ लाजमी करना चाहिए। आयत का तर्जुमा है, और तुम औरतों को हरगिज बराबर नहीं रख सकोगे, अगरचे उसकी हिरस करो सो तुम बिल्कुल ही एक तरफ न झुक जाओ कि दूसरी औरत को लटकी हुई छोड़ दो, और अगर इस्लाह करते रहो और परहेजगारी करते रहो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से गैर मुस्लिमों को यह गलत फहमी है कि इस्लाम में 4 शादियां करना लाजिम है। ये लाजिम नहीं बल्कि मर्द को हिदायत है कि इंसाफ के साथ एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है, वरना नहीं। अब अगर इसको मंतकी तौर पर देखें तो मर्द और औरतें एक ही तादाद में पैदा होती हैं, मगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछें तो वो बताएगा कि बच्चियां जरासीमों और बीमारियों से बच्चों से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती हैं। तो इन जरासीमों और बीमारियों से बच्चियों की निस्बत बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। फिर जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और सिगरेट नोशी के बायस मर्द मरते हैं, शराब नोशी से मरते हैं, जंगों में मर्द मरते हैं, तो मर्द औरतों की निस्बत ज्यादा तादाद में मरते हैं। आज अगर आप सर्वे देखें तो पता चलता है कि दुनिया में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, सवाए उन ममालिक के जो तरक्की पजीर हैं। औरतें मर्दों से ज्यादा हैं। भारत में औरतों की तादाद मर्दों से कम है क्योंकि लड़की को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। हमल गिराने के लिए जगह जगह क्लिनिक बने हैं। अगर ये काम रोक दिया जाए तो भारत में भी लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा हो जाएगी। So according to Hinduism, according to Christianity, you can marry as many wives as you wish. 1, 5, 10, 20,000, 10,000, no upper limit. Islam says marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि आदाद शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में 10 लाख ज्यादा है। पूरे अमेरिका में औरतें 80 लाख की तादाद में मर्दों से ज्यादा हैं। जर्मनी में 50 लाख, इंग्लैंड में 40 लाख, रूस में 90 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा हैं। सोचे कि अगर एक मर्द और एक औरत वाली बात पर मुत्तफिक हुआ जाए और मेरी बहन या आपकी बहन न्यूयॉर्क में है, हर मर्द को एक बीवी मिल गई, तो भी 80 लाख औरतें ऐसी होंगी जिनको कोई मर्द नहीं मिलेगा। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि वो दूसरी शादी कर लें या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अमेरिका में किए गए सर्वे के मुताबिक कोई भी एक शख्स शादी से पहले 8 खवातीन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है और शादी के बाद भी मर्द नहीं रुकते। उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो किसी शख्स की 20 गर्लफ्रेंड्स भी हों जिनके साथ वो जिनसी ताल्लुकात कायम करता होगा, मगर मुआशरे को उस गर्लफ्रेंड रखने पर वैसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जैसा दूसरी शादी करने पर देगा। अगर कोई कानूनी तौर पर किसी शख्स की दूसरी बीवी बनती है तो इसको हुकूक मिलते हैं, इज्जत मिलती है, मुआशरे में मकाम मिलता है। अगर किसी की गर्लफ्रेंड बन जाए तो इसको ना इज्जत और मर्तबा मिलता है, ना ही कानूनी हुकूक। तो इस्लाम ने तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए 4 शादियों की इजाजत दी है ताकि औरतें इज्जत के साथ रह सकें। एक खातून अपने शौहर को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, मगर शरीयत कहती है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर लेना ज्यादा बेहतर है, और कोई मोमिना नहीं चाहेगी कि उसकी मुसलमान बहन मुआशरे में किसी की गर्लफ्रेंड बनकर जिंदगी गुजारे। Or if your sister happens to live in America and if the market is saturated, every man has found a woman for himself, yet there will be 7.8 million females who will not find life partners. The only option remaining for these 7.8 million females is that they either marry a man who already has a wife. You can have as many mistresses as you want, 1, 10, 20, no problem. But legal wife more than one, it doesn't go down the throat. इस खातून ने ये लंबे दलाइल सुनकर कहा कि अगर एक औरत के एक से ज्यादा मर्द हों तो वो फाहशा कहलाती है, मगर एक मर्द की एक से ज्यादा औरतें हों तो वो अच्छा आदमी कहलाता है। ऐसा क्यों? I said immoral because if a woman has more than one man, she is a bad woman. But if a man has more than one woman, it's okay, yeah? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि एक शख्स की एक से ज्यादा बीवियां हो जाएं तो ठीक है, मगर एक से ज्यादा औरतें रखी हों तो वो लाजमी गलत कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड नहीं बीवी रखनी चाहिए। अगर वो निकाह करता है, इंसाफ करता है तो वो अच्छा आदमी है। उस खातून ने एक और सवाल किया कि अगर ऐसा हो जाए कि औरतों की आबादी कम हो और मर्दों की बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या फिर औरतों को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत होगी? In case if female population increases,
and male population decreases, so female can have 2 or 3 husbands. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया और सोच समझ कर किया है, मगर वो खुदा जिसने हमें पैदा किया वो मुझसे और आपसे बेहतर जानता है। उसने ये निजाम बनाया, उसने औरतों को मजबूत बनाया, वो बीमारियों से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती हैं। औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा साल जीती हैं और इस्लाम मर्दों को तो 4 शादियों की इजाजत देता है मगर औरतों को नहीं। इसकी वजह को जानना चाहें तो मर्द की 4 बीवियां हों और एक बच्चा पैदा हो तो सबको पता चल जाएगा कि उसकी माँ कौन सी है और बाप कौन है। मगर एक खातून के 4 शौहर हों और खातून हामला होकर बच्चे को जन्म दे तो माँ को तो पता चल जाएगा मगर बाप का पता कैसे चलेगा कि इन 4 शौहरों में से बच्चे का बाप कौन है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाएं और आपके 2 शौहर हों तो आपको वहाँ बच्चे के बाप के नाम के खाने में 2 मर्दों के नाम लिखना होंगे। आजकल मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है, DNA से पता चल सकता है कि कौन बाप है, मगर ये आज की बात है। 1400 साल पहले ये सहूलत नहीं थी। और सिर्फ यही वजह नहीं कि मर्दों को 4 शादियों की इजाजत दी और औरतों को 1 की। वजह यह है कि मर्द औरतों की निस्बत जिनसी तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं। दूसरी वजह यह है कि एक मर्द 1 से ज्यादा बीवियों को रखकर उनके साथ इंसाफ कर सकता है। औरतें ऐसा नहीं कर सकती। उनको माहवारी आती है, उनमें साइकोलॉजिकल तब्दीलियां होती हैं, तो वो मर्दों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। Furthermore, there are various other reasons. Man is biologically more sexual as compared to the woman. Thirdly, a man can do the role of multiple husbands as compared to women doing a role of multiple wives. Because she undergoes menstrual cycle, there are various psychological changes which it will be difficult for her to do the role of multiple wives. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि आज साइंस हमें बताती है कि अगर मर्द की 1 से ज्यादा बीवियां हों और वो मर्द इन औरतों और औरतें इन मर्दों के साथ वफादार रहें, यानी किसी और के साथ बाहर ताल्लुकात न बनाएं, तो उनको जिनसी तौर पर लगने वाली बीमारियां नहीं होती। मगर वहीं दूसरी तरफ साइंस कहती है कि अगर औरत 1 से ज्यादा मर्दों के साथ जिनसी मिलाप करे तो औरत और उन मर्दों को जिनसी बीमारियां लगने का अंदेशा होता है। तो मेडिकल और साइंसी तौर पर एक खातून के लिए 1 से ज्यादा शादियां करना ठीक नहीं है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव रिप्लाई बाय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। और देखो कि मतलब ये अहकाम जो ये तो इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले नाफिज किए, लेकिन आज जदीद साइंस के जरिए प्रूव हो चुका है कि इस्लाम ने जो भी अहकाम नाफिज किए उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। यार ये है इस्लाम की शान। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी जो है उस खातून को एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मतलब एक औरत अगर 1 से ज्यादा मर्दों से बैक वक्त शादी करे तो ये उसके लिए बेहद ज्यादा नुकसानदेह है। यार मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की मतलब क्या ही बात है कि वो मतलब हर एक को ऐसा मुतमईन जवाब दे देते हैं कि मतलब उससे भी और हर किसी को मतलब समझ आ जाती है, वो हैरान हुए बगैर नहीं रह पाता। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने भी मेरी तरह बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। यार अगर आप इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी और आपकी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम मिलकर इसी तरह एक दूसरे के इल्म में इजाफा कर सकें। सो अभी चाहता हूँ आपसे इजाजत, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।